Hello children, welcome back to our online session. I am your EVS teacher, and in this chapter, in the previous video, we have discussed about chapter 6, and your chapter 6 is houses then and now. The houses means घर, then and now means पुराने टाइम के house और आज के टाइम के house. What is the changes that has been come across in so much huge time, right? So now what I told you about is like when we were talking about the olden age. So olden age, that tells us about that when we were living in the previous classes. So what does that means? The houses were not so big, were not so well furnished, and were not so comfortable, right? So comfortable means like in previous time there was only one house, and the family members were so big that they were sharing the single particular room, right? When they were sharing the single room, so there were not separate kitchen or something, so they have to live in those particular houses only. Secondly, those houses were not so strong that they could control the climatic conditions also. In the previous time, the people who were living in the forest were supposed to use the leaves, then the branches of the trees. Slowly people learned how to bake bricks, and then they started making houses of bricks, right? So then we have studied about the modern houses. So modern houses, what are modern houses? They are giving us the complete satisfaction and the complete comfort that is required, like it has a bedroom, a kitchen, a dining room, and a drawing room. It's also right. Construction of the modern houses are done by the people who are professionally qualified for it, right? So though we give them a contract to the professionals, and they help us in constructing a good house. I have given you this homework in the previous class. Then today the topic that we have to cover is houses in the past. Houses in the past, that means पुराने टाइम पे जो हमारे houses थे वो कैसे थे. In the past, the houses were constructed in a very different way. Nothing was planned in advance. Architects and builders were not hired. People used to build houses anywhere on the piece of land that they possessed. They used to leave a lot of space for building courtyards in the house. Bricks, mud, and wood were commonly used in building materials. Now what happened is, जो पुराने टाइम के घर होते थे वो बहुत ही डिफरेंट वे में कंस्ट्रक्ट करते थे मतलब डिफरेंट वे में बनाते थे. जैसे कि उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती थी, उसको पहले से हम कोई एडवांस प्लानिंग नहीं करते थे, राइट? एडवांस प्लानिंग नहीं करते थे, और ना ही उस टाइम पे हमारे आर्किटेक्ट या बिल्डर्स होते थे. आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं? जो हमारे हाउस का एक स्केच बनाते हैं कि हमको घर किस डिज़ाइन का चाहिए, किस तरह के रूम्स चाहिए, कैसे रूम्स चाहिए, राइट? तो उनको हम आर्किटेक्ट्स बोलते हैं. बिल्डर्स जो हमें ये सब सप्लाई करते हैं मटेरियल, जैसे आपका सीमेंट है, रॉड्स हैं, ब्रिक्स हैं, ये सब सप्लाई करते हैं ताकि हमारा एक अच्छा और मॉडर्न और एक कंफर्ट हाउस बन पाए. उस टाइम क्या करते थे पुराने टाइम में लोग कि उनके पास जो ज़मीनें होती थी जिनको वो ओन करते थे, ओन मतलब जो वो ज़मीन जो खुद की होती थी, तो उस पर वो घर बनाते थे. घर इतना तो नॉट ज़्यादा बड़ा नहीं बनता था, पर वो कोर्ट यार्ड के लिए, कोर्ट यार्ड मतलब जैसे बगीचा हम जिसको बोलते हैं, या ग्राउंड, ओपन ग्राउंड, वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस छोड़ते थे ताकि वो वहाँ पे कुछ ना कुछ ग्रो कर सकते. इट कैन बी अ फ्रूट्स, इट कैन बी अ वेजिटेबल, या गार्डनिंग, दे कैन डू एनीथिंग, राइट? और जो मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल जो कॉमनली यूज़ होता था वो था ब्रिक, मड एंड वुड. A mixture of cow dung, mud and water was smeared on the wall and floors regularly to keep insects and flies away. Each house had plenty of doors and windows for ventilation. In the evening, lanterns or earthen lamps were used for lightning, as there was no electricity in those days. Now what happened is कि to get rid of the insects or worm, तो जो पुराने टाइम के जो लोग थे वो क्या करते थे? काउ डंग मीन्स गोबर, राइट? तो गोबर, मिट्टी और पानी को मिक्स करके
वो दीवार पे लगाते थे, जैसे कि हम पेंट करते हैं दीवार पे या ज़मीन पे, राइट। वो उसको ऐसे लगाते थे ताकि जो इंसेक्ट्स और वॉर्म है दे शुड नॉट एंटर द हाउस, राइट। उसके बाद क्या होता था कि वो जो पुराने घर थे उनमें विंडोज़ बहुत ज़्यादा होती थी, और विंडोज़ ज़्यादा होती थी तो वेंटिलेशन होता था। वेंटिलेशन मीन हवा का आना जाना बहुत अच्छा था। जैसे कि अगर हमारा घर है, अगर हम इमेजिन करें हमारा रूम है और उस पर एक ही विंडो है और उसको भी हम बंद रखेंगे या कभी कभी खोलेंगे भी, तो उतनी एयर अंदर नहीं आएगी जितनी कि अगर एक ही रूम में हम 2-3 विंडोज़ बनाएंगे। तो उससे क्या होता है कि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन होता है। तो जब क्रॉस वेंटिलेशन होता है तो हमारा रूम भी ठंडा रहेगा, राइट। और जब शाम होती तो लालटेन यू मस्ट हैव सीन, जो एक कांच का होता है, और नहीं तो आपके अर्दन लैम्प्स जैसे दिए वगैरह, उनको यूज़ करते थे लाइटनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पुराने टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। फूड वॉज कुक्ड ऑन चूल्हास यूजिंग काउ डंग केक्स एंड फायरवुड। और जो खाना बनता था, खाना कहाँ पे बनता था? खाना चूल्हे पे बनता था। और उस चूल्हे में हम क्या यूज़ करते थे? हम काउ डंग केक्स यूज़ करते थे। डैट मीन्स कंडे, या हम उसको उपले भी बोलते हैं, या और हम फायरवुड को यूज़ करते थे। एवरी पीपल हैड इट्स ओन वेल फॉर वाटर। और हर फैमिली के पास खुद का एक कुआं होता था, राइट। अ कॉमन बाथरूम वॉज यूज बाय द होल फैमिली। और एक ही बाथरूम होता था जो कि पूरे फैमिली वालों को यूज़ करना पड़ता था। अगर हम आज के टाइम पे देखें, जो हमारे मॉडर्न हाउस है, हर रूम में एक सेपरेट बाथरूम होता है एंड एवरीवन वांट्स देयर सेपरेट बाथरूम इन द हाउस। वुमेन्स ऑफ द हाउस वर्क टुगेदर इन कॉमन किचन। पुराने टाइम में क्या होता था? अगर घर में बहुत सारी लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, तो वो एक साथ एक ही किचन में काम करते थे। आज के टाइम पे भी करते हैं पर बहुत कम करते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिव टुगेदर इन अ जॉइंट फैमिली। और बहुत पूरी फैमिली, जितने भी सारे लोग हैं, वो सब एक साथ रहते थे एज अ जॉइंट family. Now here one topic is given. Mud is still the most commonly used building material. It is known as adobe, chica, cob, sod, kajan, etc. In different languages, mud houses remain cool in summers and warm in winters. तो ये इम्पॉर्टेंट है। आई कैन आस्क यू द डिफरेंट नेम्स ऑफ मड, कि हम मिट्टी को अलग अलग नामों से कैसे जानते हैं, या मिट्टी के अलग अलग नाम क्या हैं, राइट। सेकेंडली, जो मिट्टी के घर होते हैं वो समर्स में कूल होते हैं और विंटर्स में गर्म होते हैं। सेकेंड टॉपिक जो लिखा हुआ है यहाँ पे, हाउसेज इन अर्लियर टाइम वर वेरी सिंपल बट दे वर फंक्शनल एंड कम्फर्टेबल. They were cheap to maintain. The open courtyard, high walls and good ventilation help people to remain fit and healthy. अब पुराने टाइम के जो हाउसेस होते थे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते थे। उसमें उनको फंक्शनल कैसे होता था कि एक तो वो बहुत ज़्यादा चीप होते थे मेंटेन करने के लिए। आज के टाइम पे अगर हम मेंटेन करें तो हम POPs कराते हैं, हम फर्नीचर बनवाते हैं, AC लगवाते हैं, तो हर लाइट्स लगवाते हैं, हर चीज़ का मेंटेनेंस बहुत आता है, राइट। पुराने टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। दूसरा, जो ओपन कोर्टयार्ड्स होते हैं, ओपन जो बगीचे वगैरह जो जिन्हें हम बोलते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, गुड वेंटिलेशन हो रहा है जिससे हवा का आना जाना बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो हेल्प करता था लोगों को हेल्दी रखने और फिट रखने में, राइट चिल्ड्रन।